Good evening, friends. This is Santosh Takle. I'll not be taking your today's class. Some other teachers, Vaishali Madam and Varsha Madam, will be taking your class. But I will be giving you brief introduction, not more than a minute or so. So, as you all know, we are here to learn Marathi language. Somebody feels attraction or interest into this specific language, which is world's 15 number language as far as the world Marathi speakers are concerned. And as far as India is concerned, we have already discussed in first lecture that it stands at a third rank as far as the uh, total speakers are concerned. But that is not today to be covered. As I said, I'll be handing over this particular mic to other teachers. But just I wanted to convey certain things to all Marathi learners or enthusiasts that learning language is very important and very importantly can be contributed if you have real need of it, and that need arises when you are in that particular locality. As many of you are from Maharashtra or will be there in Maharashtra for long period, you will have people around you who will be speaking in Marathi, and it helps you to improve your vocabulary. सो vocabulary होना, शब्द संग्रह होना बहुत जरूरी है एक अच्छी भाषा सीखने के लिए, उसके ऊपर मास्टरी आने के लिए। तो इसके ऊपर मैडम लोग अच्छे से फोकस करेंगी। बट उसके पहले आपको वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मराठी में हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसी से शुरुआत करेंगे अल्फाबेट्स की तरह। मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव ये है कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, there we have very important thing called Google Translator. It's there in mobile, it's there in your laptop, it's there everywhere. Even smart TV has it. So आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस के तौर पे एक इंटरेस्टिंग गेम खेलना है। और वो गेम यही है कि आप जो ट्राई करना चाहते हो वो पहले पेन पेपर से लिखो, और उसी को क्रॉस चेक करने के लिए गूगल विल हेल्प यू आउट. दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज अवेलेबिलिटी is so much helpful that probably our input required to make you little bit okay with Marathi is only 50 to 40%. Remaining 60% can be contributed by you own with the help of support system available in present era. So this is what I wanted to convey. Other things we have already told you. And now I hand over mic to Vaishali madam. She will take care of your future lecture and Varsha madam will assist. Thank you, ma'am. Please continue. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. Am I audible clearly? Please type in the chat box. Yes, thank you so much. So, we'll start with our today's session. In first session, sir has discussed about Marathi language and its history and everything. Okay, so आज शुरू करेंगे हम लोग सेकेंड सेशन एंड दैट विल बी योर प्रैक्टिकल सेशन. ओके, इसमें से हम लोग क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या करना है लैंग्वेज सीखने के लिए, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स. ओके, सो आप सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? इज दिस प्रेजेंटेशन, एक्सक्यूज मी, या, थैंक यू सो मच. We'll start with the first slide. These are the today's topics. Okay, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग मराठी वॉवेल्स पढ़ेंगे. जैसे अभी सर ने आपको बताया कि हर लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है. ओके, तो हर लैंग्वेज में वॉवेल्स है, कंसोनेंट्स है. तो वैसे ही मराठी में भी आप वॉवेल्स पढ़ोगे, आज कंसोनेंट्स पढ़ोगे. मराठी वॉवेल्स को यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज मराठी स्वर. पॉइंटर सिलेक्ट कर लेती हूँ. ओके, मराठी वॉवेल्स को मराठी स्वर बोला जाता है. उसको कैसे पढ़ना है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप सबको इजी हो इसीलिए इंग्लिश में उसका कैसे प्रोनाउंस करना है आपको वो लिखा हुआ है, स्पेलिंग्स दिए हुए हैं. देन वर्षा मैडम विल कंटिन्यू विथ मराठी कंसोनेंट्स. दोज आर कॉल्ड एज मराठी व्यंजन.
त्यांना आपण मराठी व्यंजन म्हणतो. मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मराठी यूज करूंगी ताकि आपको मराठी कैसे बोली जाती है वो भी समझ में आए. ठीक है. तर हे मराठी व्यंजन आहे. इट इज रिटन और इट इज बिन प्रोनाउंस लाइक दिस. इट इज बिन रीड लाइक दिस. मराठी व्यंजन. और आज हम लोग लेंगे कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप डेली ऐसे कुछ वर्ड्स ढूंढे, उनको प्रैक्टिस करें. जैसे हम लोग इंग्लिश का क्लास करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वोकैबुलरी बिल्डअप करते हैं. उसके लिए हम लोग कुछ वर्ड्स धीरे धीरे सीखते जाते हैं. वैसे ही मराठी का है. एवरी लैंग्वेज विल हैव द सेम फॉर्मेट. ओके. तो नाउ विल मूव टू द आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज मराठी स्वर. जैसे इंग्लिश में आपके वॉवेल्स है A E I O U. ठीक है. 5 वॉवेल्स वी हैव इन इंग्लिश. वैसे ही मराठी में वी हैव 12 वॉवेल्स. स्वर म्हणतात. मराठी में उसको स्वर बोला जाता है. ओके. और ये जो स्वर है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं अ आ, आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग इस इंटरेस्ट से आए हैं कि उनको मराठी बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, और जो सामने वाला मराठी में बात कर रहा है वो समझ में आना चाहिए. ओके. तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसीलिए हम लोग बहुत ही बेसिक्स से जा रहे हैं. जैसे हम मराठी मीडियम के बच्चे जब सीखते हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे जब सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हो तो ऐसे बेसिक से शुरू किया जाता है. जैसे अभी ये है आ, ई. ये भी ई है. इसको जैसे हिंदी में बड़ी ई बोला जाता है, मराठीत त्याला आपण दुसरी ई म्हणतो. दुसरी मीन्स सेकंड. ये फर्स्ट है, सेकंड है. ठीक है. उसके यूजेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तब आपको इनका डिफरेंस पता चल जाएगा. फिलहाल आज आपको यही करना है कि ये जो भी लेटर्स में बताने जा रही हूँ आपको, या अल्फ़ाबेट्स है, वॉवेल्स है, उनको पहले आप समझ लो. एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक some notebook or some pages and a pen और pencil with you, so that हम लोग इसके बाद, इस स्लाइड के बाद कैसे लिखना है वो भी सीखेंगे. क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट था कि मराठी समझ में आती है, किसी किसी को बोलने भी आती है बट लिखने नहीं आती है. तो वी विल टेक ऑल दोज थिंग्स. ओके. तो फिर से शुरुआत करते हैं. आप अपना माइक बंद करके मेरे पीछे रिपीट भी कर सकते हो, ताकि आपको ये अच्छे से ध्यान में आ जाए. ओके. तो ये है आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और आहा. ठीक है. और जैसे इंग्लिश में आ होता है, अ होता है, तो ये दो एक्स्ट्रा स्वर जो है वो अभी 2009 या 2019 से जोड़े जा चुके हैं सिलेबस में. तो जो अभी छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको 14 स्वर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आ और ओ भी होता है. वो मैं आपको लिख के बताऊंगी. तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, बी फॉर बॉल पढ़ते हैं. मतलब क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन या उस स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड से, उस लेटर से शुरू होता है. तो वैसे ही ये जो अ है, अ से मराठी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है तो आपकी जो नून चीजें होती है तो उनको कैसे बोला जाता है, वो उस वर्ड से या उस लेटर से वो कैसे शुरू होता है वर्ड. इसीलिए यहाँ पे ये जो अ है, तो अ से अनानास. आप हिंदी में अनानास बोलते हो, पाइनएप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, तो मराठी में उसको अनानास बोला जाता है. आ से ये क्या है, अदरक है, तो हिंदी में अ से अदरक हो जाएगा, लेकिन ये आ है, मराठी में उसको आले, जिंजर जो है,
आले बोला जाता है। तो ये आ से शुरू हो गया, ये आयन है, आपको पता है। हिंदी में भी स्त्री बोलते हैं, मराठी में भी स्त्री बोलते हैं। तो ई से स्त्री से है, ये है आपका लेमन। ई से इडलिंबू, ओके। फिर ऊ से उपमा दिया है, उखल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये है दुसरा ऊ म्हणतो आपण त्याला, ऊ से ऊस। मग हा ए आहे, ए वरून एडका। देन अय है, ऐसे आयरन। एक मिनट, हाँ ये बीच में आ रहा है शायद। ओ ओम। औ से औषध, जो मेडिसिन होता है, दवाई होती है, उसको मराठी में औषध बोला जाता है। जैसे अंजीर है, ओके। तो अन से अंजीर। और आहा, आहा इज बिन यूज फॉर सम स्पेशल पर्पजेस, तो उसका यूज भी हम लोग बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे नीचे एक दिया है, अगर आपको दिख रहा है, रू है, ओके। तो ये भी जोड़ा जाता है स्वर में, रू से ऋषि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो किसी का मैसेज है, आई जस्ट चेक। या तो ये जो दूसरी ई है, मैं अभी आपको ये सब लिख के बताने वाली हूँ, तब ये हिट होने वाला है, ठीक है। तो इफ यू आर रेडी विथ योर नोटबुक्स एंड पेन्स और पेंसिल्स, प्लीज पुट येस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। आई एम गोइंग फॉर द अनदर स्क्रीन, so just wait. बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑन है, सो प्लीज कीप योर वीडियोस ऑफ, इट डिस्ट्रैक्ट्स। So now I am presenting whiteboard. Is it visible to all of you? क्या आप सबको दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड? यस, थैंक यू। सो लिखना शुरू कर देते हैं। जिनको पता नहीं है कैसे लिखना है, तो वो थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा आपके लिए। सी, दिस इज हाउ यू राइट ओ, ओके। तो जैसे अ से मैंने बोला था अनानस, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हम लोग बाद में सीखते जाएंगे, ठीक है। ये है आपका आ। तो जैसे वहां पे जिंजर का पिक्चर दिखाया था, तो मराठी में जिंजर को आले बोला जाता है। आ से आई मतलब मदर, वो भी होता है, ठीक है। फिर ये है आपका पहला ई। ई से आपने स्त्री देखा था। ई से इमारत मतलब बिल्डिंग भी होता है, ठीक है। देन दिस इज दूसरा ई। तो जो बड़ा नींबू होता है उसको मराठी में इडलिंबू बोला जाता है, और वो इडलिंबू जो है वो इस ई से शुरू होता है। वैसे ही ईद आप लिखते हो तो ये भी दूसरी ई से शुरू होता है, ओके। देन दिस इज ऊ, ओके। दिस इज दूसरा ऊ। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ लिख रहे हैं? जरा लिखिए चैट बॉक्स में, आर यू राइटिंग विथ मी?
Yes, thank you so much. Yeah, okay. So let's continue. ये जो अ है आपका, ओके, आपको पढ़ना कैसे है, मतलब इंग्लिश में ये है अ, ये है आपका आ, दिस इज ई, दूसरा ई, मतलब ये सब जो स्वर है वो मात्राओं में यूज होते हैं, ठीक है। तो वो मात्रा भी हम लोग सीखेंगे। फिर ये ऊ आपका यू, और ये डबल ओ जो है वो है आपका, सॉरी, दूसरा ऊ, ओके। फिर नेक्स्ट है ए। ए एडका बघितला आपण, ए के बाद आता है ऐ। ये जो मैं ऐसे दे रही हूँ उसको मात्रा बोला जाता है। बोल आपण मराठीमध्ये असं बोलतो, ए, एला एक मात्रा ऐ, ओके। तो ये ए हुआ, ये ऐ हुआ। फिर ये है ओ, जैसे हिंदी में ओ से ओखली होता है, ओके, तो ये ओ है वो। प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ। ओ के बाद आता है औ, ओके। औ से मैंने बोला था औषध, औषध मीन्स मेडिसिन, मराठी में मेडिसिन को औषध बोलते हैं। फिर ये है अम, अम, अम से जैसे हिंदी में अंगूर होता है, मराठीमध्ये अंबारी असतं, अंजीर असतं, ओके। देन आहा, ओके। तो ए कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, मतलब आपको इंग्लिश के लेटर्स में इसीलिए लिख के दे रही हूँ ताकि आपको ये मराठी पढ़ने में आसानी हो इनिशियल डेज में, ओके। ए कैसे लिखते हैं, सॉरी, कैसे पढ़ते हैं, आई, ओ, औ। कैन बी ए एम और ए एन, एंड आहा, ओके। हैव यू ऑल रिटन दिस, अ से आहा तक सबका लिख के हो गया? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, गुड। तो अब हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे मैंने आपको, जब जो मैंने अभी आपको कैसे लिखना है ये बताया, तो वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ओके। ये है स्वर, स्वर, और फिर आगे आप वर्षा मैडम से व्यंजन पढ़ेंगे इसी स्लाइड के बाद। तो स्वर और व्यंजन
इन सबको मिला के 12 खड़ी बनती है, और उस 12 खड़ी में से फिर हम लोग वर्ड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो एनीबॉडी, हम लोग एक काम करते हैं, इस लेक्चर में आपको माइक शुरू करने के लिए नहीं बोलते हैं, अगले लेक्चर से हम लोग ये शुरू करेंगे ताकि आपको कितना पढ़ने आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, वो चेक कर सके। ठीक है, तो फिलहाल दिस इज बीइंग फर्स्ट लेक्चर, you all will keep your mics off. Okay, so now go back, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि ये अ से लेकर आहा तक जो हम लोगों ने आज पढ़े हैं वो मराठी लैंग्वेज में उसको स्वर बोला जाता है। 12 स्वर है सॉरी, अ आ, अ आ, ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ अम आहा। ओके, इसके बाद अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ये जो 12 स्वर हमने अभी पढ़े हैं, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आई विल आस्क वर्षा मैडम। किसी को भी कुछ डाउट है, आई एम गिविंग यू अ मिनट। इसमें बहुत सारे तो स्टूडेंट्स हैं हमारे, बट जो बाहर से जो न्यू लोग कनेक्ट हुए हैं, क्या आप सबको ये अ आ ई जो मैंने लिखा, तो क्या आप सबको लिखने के लिए आ गया? कुड यू राइट दैट? जिनको किसी ने एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डाला था कि आपको हिंदी लिखना सीखना है, तो क्या अगर आप हो तो क्या आपको समझ में आया है कैसे लिखना है? ऐसे ही बेसिक से शुरुआत करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ वर्षा मैडम, कैन वी स्टार्ट विथ यू? प्लीज switch on your mic. Yes. Yes, so I will stop my presentation, and now you can present your screen. Yeah, I Okay. will just interfere in case you allow. Yes, sir. Yes. Yeah, somebody has asked question, what is written for the sheep? It is in, what is in Marathi? It is basically edka. It's also called mendha, mendi. But here for this particular swar listing, we said A for edka. तो आप शिव कुमार जी ने ये सवाल पूछा था, चैट बॉक्स देख के। मानसी नलावड़े का भी कुछ क्वेश्चन है मैडम, उसको आंसर कीजिए फिर कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। I'll check, sir. Thank you. Acha, Mansi, Ru. We are going with very basic things, so Ru will be taught in the next lesson. Okay. As you all know how to write Marathi and all, but we have many new people who are learning the basics from very basic. Okay, so we have taken today with a to aha. Ru I have not included, I have just told them that this is Ru. I'll teach this in the next lesson. Okay, yeah, so now I'm switching off my mic. Varsha madam, you can continue. Okay. Hello everyone. Is my voice audible? Am I audible? Please write in the chat box. Yes. As you all are now familiar with Swar of Marathi, now we will move to Vyanjan. Okay. Here I'm going to teach you what is Vyanjan. Okay.
इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? ओके चलो। सी, जैसे आपने मराठी में स्वर देखे, वैसे ही व्यंजन भी इम्पोर्टेंट होते हैं मराठी भाषा फॉर्म होने के लिए। ओके, मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए व्यंजन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, उन्हें स्वर और व्यंजन को एक साथ मिला के मूलाक्षरे कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? मूळाक्षरे. दे आर कॉल्ड एज मूळाक्षरे इन मराठी. मराठीमध्ये स्वर आणि व्यंजन यांना एकत्र मिळून मूळाक्षरे असं म्हटलं जातं. ओके, तर आता जसं मॅडमने तुम्हाला शिकवलं, मैडम ने आपको सिखाया. अ, देखिए, अ अननस, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू, उ उंदीर, उ उस. मैडम ने अलग वर्ड्स यूज किए. ओके, पिक्चर्स अलग थे, वर्ड्स अलग थे. ये क्या होता है, आप लोग एक ही अक्षर से आने वाले अलग अलग शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, ए एड़का, ऐ ऐरण, ओ ओट, औ औषध, अंजीर, आहा. ओके, ये क्या थे? स्वर थे. तो स्वर तो आपने डिटेल में सीख लिए, स्वर को लिखना कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करना है. ओके, तो अभी अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्यंजन. ओके, देखिए, क पहला है क. देखिए, क से कमल. ओके, कमल, लोटस, जिसे हिंदी में कमल और इंग्लिश में लोटस कहा जाता है, उसे मराठी में क्या कहते हैं? कमल. ओके, तो क से कमल. ओके, ख. नाउ ख से खजीना. ओके, ख पासून खजीना. खजीना इज ट्रेजर. ओके, ट्रेजर को खजीना कहा जाता है. मराठीत त्याला खजीना म्हणतात. खजीना. ओके, थर्ड ग गणपती. ग पासून गणपती. गणपती इज लॉर्ड गणेशा. ओके, घ घरटे, जिसे इंग्लिश में नेस्ट कहा जाता है. है. ओके, घर होता है, उसे घरटे कहते हैं. घटे. और ये जो अक्षर होता है उसे अंग कहते हैं. आगे एक अनुस्वार दिया जाता है, उसे अंग कहते हैं, जिसका उपयोग कुछ शब्दों में होता है, जैसे वांग्मय. ओके, वांग्मय जैसे शब्दों में इस अंग का उपयोग होता है. ये देखिए, यहाँ पे है चाह, जिसे हिंदी में चाय और इंग्लिश में टी कहा जाता है. ओके, च पासून चहा, चहाचा. ओके, नाउ छ. छ से छत्री, जिसे हम इंग्लिश में अम्ब्रेला भी कहते हैं, मराठीत त्याला छत्री असं, छत्रीचा असं म्हटलं जातं. ओके, छत्रीचा ऐसे कहा जाता है. जहाज, शिप. ओके, शिप. जहाज. झबले, जो छोटे बच्चों का फ्रॉक होता है. ओके, उसे झबले कहा जाता है मराठी में, इसलिए झबले. और ये है न्य. टपाल पेटी. ओके, पोस्ट बॉक्स होता है जो, उसे टपाल पेटी कहा जाता है मराठी में. टपाल पेटी. ठसा, जो स्टैंप हम यूज करते हैं, उसे मराठी में ठसा कहा जाता है. ओके, इसलिए ठसा. डब्बा, डिब्बा या कंटेनर. ओके, ड से डब्बा. ढ ढग. ढग मतलब बादल, क्लाउड्स. ओके, क्लाउड्स आर कॉल्ड एज ढग इन मराठी. ढग. ओके, न न देखिए, न ये ऐसा अक्षर है जिससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए बाण. बाण इस शब्द में क्या हो रहा है? न पीछे आ रहा है. ओके, दूसरा अक्षर कौन सा आ रहा है? न, इसलिए न से बाण ऐसे कहा जाता है. न बाणाचा असं म्हटलं जातं मराठीत. ओके, नाव तलवार. ओके, स्वॉर्ड, तलवार. थवा, पक्षियों का जो फ्लॉक होता है उसे थवा कहा जाता है. थवा. दरवाजा, जिसे हिंदी में दरवाजा और इंग्लिश में हम डोर कहते हैं. दरवाजाचा. धनुष्य, एरो. ओके, धनुष्य. नळाचा, नल जो होता है उसका नळ. पतंग, काइट जो होता है उसे
प पतंगाचा ऐसा कहा जाता है। फ से फल फ्रूट्स के फ फळाचा। ब बदक डक इसलिए ब बदकाचा। भ भटजी जो पंडित होता है प्रीस्ट होता है जो रिचुअल्स करते हैं वो भ भटजी उसे मराठी में भटजी कहा जाता है इसलिए भ भटजी। म मगर क्रोकोडाइल म से मगर। इसमें क्या लिखा है यकृत। ओके य से शुरू होने वाला एक शब्द इसलिए यकृत मतलब लीवर। ओके र रस मतलब जूस। ल लसुनाचा लसून। ओके लहसुन गार्लिक वो ल। व वडाचा के वड वड मतलब बनियन ट्री होता है ना बरगद का पेड़ वो। ओके शहामृग शतुरमुर्ग होता है जो ऑस्ट्रिच कहा जाता है जिसे इंग्लिश में उसका शहामृग त्याला मराठीत शहामृग असं म्हटलं जातं म्हणून शहामृगाचा। ओके आता हा आहे जो ये है उसे भी श कहा जाता है याला मराठीत पोटफोड्या श असं म्हणतात। मराठी में इसे पोटफोड्या श ऐसे म्हणते हैं। ये है षटकोन मतलब हेक्सागोन। ओके 6 साइड्स वाला हेक्सागोन है वो षटकोन श से शुरू होता है। ससा रैबिट। ह हरिण डियर उसे हरण कहा जाता है मराठी में। ये देखिए जैसे हमें ना न पढ़ा न बाणाचा पढ़ा ना हमने तो उसमें क्या होता है न पीछे आता है वैसे ही ळ एक ऐसा अक्षर है ऐसा व्यंजन है जिससे कोई भी शब्द चालू नहीं होता। कोई किसी भी शब्द के शुरुआत में ळ ये अक्षर ये जो व्यंजन है वो नहीं आता है। ओके तो ळ बाळाचा बेबी बेबी को मराठी में बाळ कहते हैं बाळ इसलिए उसके पीछे ळ आया है इसलिए ळ बाळाचा। ओके ये क्ष है क्ष क्षत्रिय। लास्ट कंसोनेंट है लास्ट व्यंजन है ज्ञ ज्ञ ज्ञानेश्वर जो संत ज्ञानेश्वर थे सेंट ज्ञानेश्वर जो थे उनका नाम ज्ञ से शुरू होता है इसलिए ज्ञ ज्ञानेश्वर। ओके ऑल हैव अंडरस्टूड। सी ये सिर्फ क्या था एक चार्ट था जिसमें जो व्यंजन है वो दिखाए गए हैं और उसका एक इमेज देकर आपको सिर्फ एक लेटर बताया गया है कि एक शब्द बताया गया है उससे उत्पादित होने वाला। ओके तो ये आज अभी हम क्या देखेंगे वो शब्द जो है जो बाकी शब्द है वो क्या करना है अभी। Varsha madam, ओके ओके I'm audible. Just give me a second. यस Yeah, there is one question. I will answer to the question also and the methodology also. Kanik Shivkumar, see, you can keep asking questions, but not immediately when she is teaching something which is very important and which you need to understand forever. Like once you have gone through the Swar and Vyanjan, which constitute and comparable to the 26 alphabets of English. Once you know those 26 alphabets of English, you can read, write, understand English very well if you have vocabulary. Now in one day, whole of grammar of Marathi, whole of vocabulary of Marathi and everything cannot be taught. And it's not necessary that all questions which you people will ask, you will remember their answers also if she answers in a time. तो इसके मद्देनज़र आप सबको ये समझ में आना होगा कि रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे जाए जो वहाँ के लिए अप्लीकेबल है। बट फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ इसलिए दे देता हूँ। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते ए फॉर एप्पल, वैसे ही आपको मालूम होगा कि मराठी में बोला जाता है क कमळाचा। तो ये षष्ठी नाम की विभक्ति है उसका प्रत्यय है च चा ची। ओके तो षष्ठी में आपके बहुत सारी षष्ठी एक विभक्ति की स्टाइल है और इसको इंग्लिश में भी एक अपना तरीका है। जैसे एरिस अगर एक कॉन्स्टिलेशन है तो आप उसका तारा बताते वक्त बोलोगे एरिथिस। तो ये जो तरीका है ये विभक्ति वाला है। ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है जो लैंग्वेज के डीपर पोर्शन में आता है। तो यहाँ आपको अगर मैडम समझाना शुरू कर देंगी तो जो पूरा टेम्पो है जो पूरा मूड है कुछ नए लोगों का सीखने का वो एकदम टेंशन में आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सहजता से चलना है। लर्न दी अल्फ़ाबेट्स और स्वर एंड व्यंजन, learn the words, start using them in a sentence, start using these sentences in your daily usage
and then probably we'll shift to the some deeper part of grammar. Okay, so I respect and understand your concern about an interest in language. You had previously asked question, what is nalacha? Now nalacha means नल जो होता है उसका, तो न जो है उससे नल शब्द बनता है क्योंकि न उसके शुरुआत में है। तो ये सब सवालों का जवाब एक ही है, पर ये सारी चीजों का जवाब एक है ये समझने के लिए आपको हम लोगों को 1-2 महीने का समय देना पड़ेगा, जिसमें 8-10 लेक्चर हो जाएंगे। तो जैसे चंदन डे सर बोल रहे हैं कि मैडम प्लीज गो लिटिल स्लो, तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर बंगाली में भी एक सिस्टम है, मराठी और हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषिक लोगों के लिए मराठी लिखा हुआ पढ़ना आसान है, पर समझना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ जो व्यंजन और स्वर की हम बात करते हैं वो सब जगह मौजूद नहीं है। जैसे ठ की बात करेंगे, न्य की बात करेंगे, ल की बात करेंगे, तो ल हो सकता है बट ल नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज के लिए समय चाहिए, और एक एज रेंज भी है। हमारे पास 5 साल का बच्चा भी है, 10 साल का भी है, और 45, 50, 60 साल के भी लोग हैं। तो आप सबको थोड़ा एक हमको टॉलरेंस लिमिट बढ़ा के देना पड़ेगा, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं समझेगा, तो जब ग्रुप ओपन किया जाएगा वहां पे भी आप सवाल डाल सकते हो। So with all these words, try to understand our problem also. Though Marathi is our mother tongue, but teaching Marathi to non-Marathi people is our first attempt and experience. So we also need some time to learn by ourselves that how to teach this particular language, which is quite easy and interesting. So give us some little time. Thank you, madam. Please continue. Okay, thank you, sir. Yes, one of you have asked me for to go slow. Yes, अभी मैंने ऐसे स्लाइड्स बनाए हैं जो आपको वो डिटेल में पढ़ाएंगे। जो अभी मैंने चार्ट सिर्फ पढ़ के बताया है, उसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या बोला जाता है वगैरह। ओके, वो हमने दो दो लेटर का ही बनाया है, तो आप मैं वहां पे आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको। ओके, सी देखिए, ये चार्ट मैंने इसलिए गड़बड़ी में पढ़ा कि ये सिर्फ आपको एक दिखाना था कि क्या होता है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। उन व्यंजनों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, अभी जो मराठी व्यंजन है उनको आपको इंग्लिश में पढ़ना है। आपको सबको इंग्लिश तो पढ़ना आता है। ओके, तो कैसे इंग्लिश में लिख आपको उसको एक्चुअल में वैसे इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है। मराठी हम वैसे इंग्लिश में नहीं लिख सकते, मराठी को ट्रांसलेट करते हैं तभी हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने स्लाइड प्रिपरेशन किया हुआ है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है। ओके, तो मराठी जो व्यंजन है उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए। पहला लेटर हमने क्या पढ़ा था, पहला व्यंजन क्या पढ़ा था, क। तो क से कमल। ओके, क कमळ, मराठीत कमळ असं म्हटलं जातं। ओके, क कमळ। तो आपको इंग्लिश में लिखना है, प्रोनाउंसिएशन लिखना नहीं, प्रोनाउंसिएशन लिखना है उसका, 12 खड़ी लिखनी है उसकी। वो हम आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन जो 12 खड़ी लिखते हैं तब उस वक्त आप क को क्या यूज करेंगे, के ए क। ओके, के ए क। दूसरा है ख। ख से खजीना पढ़ा हमने। ओके, काय असतं ख, खजीना। तो ख को कैसे लिखेंगे, के एच ए ख। कैसे लिखना है, के एच ए ख। ओके, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी लिखना नहीं, ये 12 खड़ी में सिर्फ आप यूज कर सकते हो, लेकिन बोलते वक्त आपको आसानी हो बोलने के लिए, इसलिए स्लाइड पे ये सब लिखा हुआ है। ओके, ख को कैसे प्रोनाउंस करना है, के एच ए ख। ग, ग को पढ़ने के लिए आपको आसानी हो इसलिए क्या लिखा गया है, जी ए ग। ग को कैसे प्रोनाउंस करना है, ग, ग गणपति। ओके, ग गणपति, जी ए ग। घ, घ घरटे, मैंने अभी पढ़ाया आपको, घरटे मतलब नेस्ट होता है। तो घ को कैसे पढ़ा जाता है, घ, जी एच ए घ। क्या लिखना है, क्या पढ़ना है आपको, जी एच ए घ। ओके, अभी ये है जो मैंने बताया आपको, इसको कैसे पढ़ना है, न। ओके, अंग, अंग ऐसे पढ़ना है, इसलिए ए एन जी अंग।
वांग्मय ऐसे शब्दों में इसे यूज किया जाता है, इसलिए ANG अंग। ये जो फर्स्ट लाइन है क ख ग घ न, ओके न अंग, क ख ग घ न, यहाँ तक समझा है आप सबको कैसे प्रोनाउंस करना है क ख ग घ न? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। आपको अगर समझा है तो सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिखिए। क ख ग घ न तक समझा है आप सबको? ओके चलिए, यस, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, पढ़ते वक्त भी ऐसे पढ़ना है, जब अ आ ई आपका आहा तक खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट लाइन क्या आएगा आपका पढ़ने के पढ़ते वक्त क ख ग घ न। ओके, कैसे पढ़ना है क ख ग घ न। ओके, तो फर्स्ट लाइन अपनी हो गई। अभी क्या हम सीखेंगे सेकंड वाले में क्या आता है, देखिए च, ओके च, CHA च, च चाहा, चाय, टी, ओके च चाहा, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप लोग CHA च। ये क्या है छतरी, अम्ब्रेला, तो छ, छ को कैसे प्रोनाउंस करना है CHHA छ, ओके CHHA छ, छ छतरी। नेक्स्ट है ज, ज को कैसे प्रोनाउंस करना है JA ज, ज जहाज, ज वरून सुरू होणारा शब्द आपण कोणता पाहत आहोत इथे जहाज। कौन सा शब्द देख रहे हैं हम ज से शुरू होने वाला जहाज। ओके, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पिक्चर दिखाया है ताकि आपको पिक्चर देख के आसानी हो समझने के लिए कि वर्ड कौन सा आ सकता है। जब हम वर्ड लिखना सीखेंगे तो हम वर्ड डालकर भी बना सकते हैं। ओके, झ, झ से झबला, झबला मतलब क्या होता है फ्रॉक, छोटे बच्चों का। ओके, झ को कैसे लिखेंगे आप लोग JHA झ, JHA झ। ये भी न होता है, ओके ये भी, इसे भी न कहा जाता है NA न, इसका उपयोग भी बहुत से शब्दों में नहीं किया जाता है, इसलिए इसे ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं मराठी व्यंजनों में। ओके, देखिए अभी ये लाइन समझ में आई आपको। दूसरी लाइन क्या थी, पहली लाइन क्या थी क ख ग घ न, वैसे ही सेकेंड लाइन है च छ ज झ न, च से चाहा, छ छतरी, ज जहाज, झ झबला, न। ओके, च को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप लोग CHA च, छ को CHHA छ, ज से JA ज, झ JHA झ और न। ओके, च छ ज झ न, ये लाइन सबको समझा है क्या? इफ यू हैव अंडरस्टूड जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके चलो, सीख, अभी हमने अभी तक क्या पढ़ा, दो लाइन पढ़ा व्यंजनों का, जिसे लाइन में लिखा जाता है। जब आप व्यंजन लिखना सीखोगे, स्वर व्यंजन इन ऑल मराठी मूलाक्षर जब आप लिखना सीखोगे तो क्या करते हैं, जब अ से आहा तक का खत्म हो जाता है स्वरों का पार्ट, तो नीचे की लाइन में क ख ग घ न च छ ज झ न, ऐसा सब लाइन में एक नीचे एक लिखा जाता है। तो अभी हमारा च छ ज झ न ये भी लाइन खत्म हो गया। अभी हम क्या देखेंगे ट ठ ड ढ न। ओके, पढ़ना भी आपको ऐसे ही है क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न, ऐसे करके पढ़ना है। ओके, देखिए तो पहला लेटर क्या है यहाँ पे ट, ट, ट को कैसे प्रोनाउंस करोगे TA, ट टपाल पेटी, ट से शुरू हो रहा है इसलिए TA ट, कैसे प्रोनाउंस करना है TA ट। अभी ठ है, ट के बाद आता है ठ, ठ को कैसे प्रोनाउंस करना है THA ठ, ठ मतलब ठ ठसा, स्टैम्प है वो, स्टैम्प को ठसा कहा जाता है मराठी में, इसलिए THA ठ। ओके, ड, DA ड, प्रोनाउंस करते वक्त ही देखिए जब हम ड बोलते हैं तो हमें ऐसे माइंड में ही पता चल जाता है कि क्या आएगा, डी आएगा स्टार्टिंग में इसके।
तो उसको अ लगा देते हैं। ओके, ड, डी ए, ड से डब्बा, हिंदी में जिसे डिब्बा और इंग्लिश में कंटेनर कहा जाता है त्याला मराठीत डब्बा म्हणतात. ओके, काय म्हणतात त्याला? डब्बा, डब्बा. ड के बाद आता है ढ. ढ इज प्रोनाउंस एज DHA, ढ. ढ को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? DHA, ढ. ढग, ढ, ढग. क्लाउड, बादल, उसे मराठी में क्या कहते हैं? ढ, DHA, ढ. ढ को DHA करके प्रोनाउंस किया जाएगा. ओके, नाउ ण. ओके, ण को भी ये देखिए, ण जो है वो पहला वाला हमने पढ़ा, उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम था, इसलिए NA ही लिखा जाता है, और ये न को भी NA लिखा जाता है. यहाँ पे मैंने एरो दिखाया है आपको, ये क्यों है? क्योंकि न एक ऐसा वर्ड है, आप बोलोगे बाण, मराठी में तो एरो को बाण कहते हैं, और ण तो बाण तो ब से शुरू होता है, तो आपने कैसे दिखाया कि ण कैसे, ण से एरो कैसे दिखाया आपने? इसलिए कि मराठी मध्ये ण पासून कोणताही वर्ड चालू चालू होत नाही. ण से कोई भी वर्ड मराठी में चालू नहीं होता है. ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो ण से शुरुआत हो, जिसकी शुरुआत न से हो. ऐसा एक भी शब्द हमारी वोकेबलरी में, मराठी वोकेबलरी में अवेलेबल नहीं है. इसलिए हम ण बाण, ओके, ण बाण के लिए यूज करते हैं. समझा सबको? ट ठ ड ढ ण, ये लाइन समझ में आई है सबको? बताइए जल्दी, ट ठ ड ढ ण, ये लाइन समझ में आई है? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? किसी को कोई समस्या यहाँ तक? ओके, चलो, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अभी तक हमने क्या पढ़ा? क ख ग घ न, त थ द, सॉरी, क ख ग घ न, च छ ज झ न, और ट ठ ड ढ न. ओके, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा हमारा, क्या पढ़ेंगे हम? त थ द ध न. ओके, त थ द ध न. तो त को कैसे लिखना है, कैसे प्रोनाउंस करना है? त मतलब TA. ओके, TA, त ऐसे प्रोनाउंस करना है त को. त से तलवार, ओके, स्वॉर्ड, मराठीत त्याला तलवार म्हणतात. मराठी में क्या कहा जाता है? तलवार. त, तलवार. तो त को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप लोग? TA. ओके, नेक्स्ट इज थ. THA, थ. थ को कैसे प्रोनाउंस करना है? THA, थ. जो पक्षियों का फ्लॉक होता है आकाश में, ओके, उसको मराठी में थवा कहा जाता है. थवा. पक्षी जे एकत्र आकाशामध्ये उडतात त्यांना मराठीत काय म्हणतात? थवा म्हटलं जातं. उस कलेक्शन को क्या कहते हैं मराठी में? थवा. म्हणून थ, थवा. THA, थ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप लोग? THA. ओके, द. द को कैसे लिखना है? DA. आपने ड को कैसे लिखा है? DA ही लिखा है. और ड, डिब्बा वाला जो ड था, कंटेनर वाला जो ड था, उसको भी आपने DA लिखा है. और द को भी आपने क्या लिखना है? DA. DA पढ़ने वक्त इसको ड नहीं पढ़ना है, द पढ़ना है. इस DA का अर्थ द होता है, और जब वो कंटेनर वाला DA, उसका अर्थ क्या होता है? ड. ओके, ये सिर्फ इसलिए ये सब प्रोनाउंसिएशन के लिए ही यूज किया जाता है. अगर आप ऐसे ही लिखते बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, जब द के लिए भी DA लिखा तो समझ में आएगा क्या कि कौन सा है, ड है या द है. इसलिए ये सब प्रोनाउंसिएशन में यूज किया जाता है. इंग्लिश में जब हम मराठी को लिखते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रांसलेट होती है. ओके, देखिए, द को कैसे लिखेंगे हम लोग? DA, द, दरवाजा. ओके, ध, DHA, धनुष, धनुष्य बाण. ओके, धनुष्य बाण. ध, धनुष्य बाण. ध को कैसे लिखेंगे? DHA. ध को लिखना है DHA. और ये न है, जो न बाण वाला न था, उसे भी हमने NA लिखा. और ये न है, इसे भी प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, इसलिए इसे भी NA यूज करेंगे. ये नल है, पानी का नल. ओके, समझा आपको? त थ द ध न, ये लाइन सबको क्लियर हुआ? त थ द ध न समझा सबको?
इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है तो सिर्फ सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिखिए प्लीज। ओके, क्या सीखा अभी तक हमने? क ख ग घ न, च छ ज झ न, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न और त थ द ध न। ओके, अभी क्या सीखना है देखिए, प फ ब भ म। ओके, प फ ब भ म क्या है देखिए, प को क्या कहते हैं? प से कौन सा वर्ड सीखा हमने? प से पतंग। ओके, प पासून कोणता शब्द शिकलो आपण? प पतंग। मग त्याला कसं प्रोनाउंस करणार तुम्ही? कैसे प्रोनाउंस करेंगे प को? व्हाट यू विल यूज फॉर प्रोनाउंसिंग प? पी ए प। ओके, पी ए प। वैसे ही फ, फ को कैसे लिखना है? पी एच ए फ, फ से फळ। ओके, मराठी में फळे फळे बोलतात। ओके, मराठी में क्या कहते हैं? फळे। हिंदी में हम फल और इंग्लिश में फ्रूट्स बोलते हैं, वैसे ही मराठी में क्या बोलना है? फळे, फळ। ओके, ब, ब बदक। ओके, ब को कैसे लिखना है आपको? कैसे प्रोनाउंस करना है? सॉरी, बी ए, बी ए ब, ब से ब बदक, बदक। बत्तख और डक, उसको मराठी में बदक कहते हैं, बदक। ओके, मग ब बदक। भ, बी एच ए, भ को कैसे लिखेंगे आप? बी एच ए भ, भ भटजी। ओके, म, म को कैसे प्रोनाउंस करना है? एम ए म, म मगर। यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखाया गया है आपको, उसको मराठी में मगर बोलते हैं। काय म्हणतात त्याला मराठीत? मगर म्हणतात। ओके, म्हणून इसलिए म, एम ए म। ओके, समझा है आपको? प फ ब भ म। ओके, प फ ब भ म। अभी हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे, य। ओके, यज्ञ दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए अग्निकुंड दिखाया गया है, ज्याला मराठीत यज्ञ म्हणतात। इसको क्या कहते हैं मराठी में? यज्ञ। व्हाट इट इज कॉल्ड एज यज्ञ। यज्ञ हा शब्द य पासून शुरू होतो। ओके, य से शुरू होता है, तो य को कैसे प्रोनाउंस करना है आपको? वाय ए य, वाय ए य। ओके, नेक्स्ट इज र, र को कैसे प्रोनाउंस करना है? आर ए र। जो जूस दिखाया गया है उसको मराठी में रस कहते हैं, रस। कोणताही फळांचा रस। ओके, रस, इसलिए र को कैसे प्रोनाउंस करना है आपको? आर ए र। ओके, नेक्स्ट है ल, ल, ल लहसुन। ओके, लहसुन बोलते हैं आप हिंदी में, मराठीत त्याला लसूण म्हणतात। मराठी में क्या कहते हैं उसको? लसूण। ओके, लहसुन। मग लहसुन, जिंजर, सॉरी, यस, सॉरी, गार्लिक, गार्लिक जिसको गार्लिक कहा जाता है। ल, ल को कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? एल ए ल। ओके, ल को कैसे प्रोनाउंस करना है? एल ए ल। बाद में है व को कैसे प्रोनाउंस करना है? वी ए व, वी ए व, व वडाचा। ओके, वड, वडाचं झाड दिलेला आहे तिथे, कौन सा पेड़ दिया है? बरगद का पेड़, बनियान ट्री दिया है वहां पे, उसको मराठी में वड कहते हैं, इसलिए व वड। ओके, अभी ये श है। ओके, ये श और दोनों श, दोनों का डिफरेंस देखिए, दिख रहा है सबको? देखो, एक ही स्लाइड पे दो मैंने एडजस्ट किया है, तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसको कैसे लिखना है और इसको कैसे लिखना है। ओके, दोनों को देखिए, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है श, इसलिए एस एच ए श। एक से शतुर्मुर्ग चालू होता है, कि शहामृग मराठीत त्याला म्हणतात, ऑस्ट्रिच कहते हैं आप इंग्लिश में उसे, और दूसरा भी श है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए आप एस एच ए श प्रोनाउंस कर सकते हैं। दूसरा है षटकोण, षटकोण। ओके, षटकोण जो हेक्सागन होता है उसे, उसको, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? षटकोण, उसे मराठी में षटकोण कहते हैं। तो ये दोनों श है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, आप उसको एस एच ए श करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स, ससा। ओके, ससा, ससा रैबिट। ह, हरिण। ओके, ह हरिण, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? एच ए।
और ळ है जो पहले हमने ल पढ़ा उसको भी एल ए, जो लहसुन वाला ल था उसको हमने कैसे पढ़ा एल ए, ये भी ळ है उसको भी एल ए प्रोनाउंस करना है। ओके, क्ष, क्ष क्षत्रिय। ओके, क्ष, ये क्ष को कैसे प्रोनाउंस करना है देखिए, इसमें क्या होता है क्ष प्रोनाउंस करते वक्त ही हमारे ध्यान में आता है कि इसमें आधा श आने वाला है। ओके, श आने वाला है तो एस एच ए तो इम्पोर्टेंट है, और प्रोनाउंस करते वक्त पहले मुंह से क्या निकलता है क। ओके, क्ष ऐसे निकलता है ना, तो क्या लिखेंगे के एस एच ए क्ष। ओके, लास्ट है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञ कैसे प्रोनाउंस करना है आपको डी एन वाई ए ज्ञ। ओके, ज्ञ, ज्ञ ज्ञानेश्वर। ओके, ज्ञ ज्ञानेश्वर, ज्ञ आपको कैसे प्रोनाउंस करना है डी एन वाई ए ज्ञ। ये है रू, रू है, रू को कैसे प्रोनाउंस करना है आर उ रू, रू से ऋषि। ओके, तो क्या क्या पढ़ा देखिए हमने, क ख ग घ न। ओके, क्या क्या पढ़ा हम सिर्फ एक बार गो थ्रू करेंगे। क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, स ह ळ क्ष ज्ञ। ऐसे ही आपको जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही लाइन में पढ़ना। ओके, एनीवन हैज, अभी तक जो मैंने सिखाया वो समझा है सबको? ओके, वैशाली मैडम यू कैन कंटिन्यू नाउ, my topic is over. Okay, I'll take over, madam, if you allow. Yes, sir. Okay. See, we are almost closing because it's 9:57. We started at exactly 9 p.m. and we are supposed to close it by 10 p.m. So it's 1 hour per week, that is on this particular day. And as you must have felt that we could not cover even fully Swar and Vyanjan, but it is the major content for the writing, reading of that particular specific language. तो अगर मराठी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमको स्वर व्यंजन से जूझना है, समझना है, लिखना है, तो आज हमने उसको सिर्फ ग्लांसिंग तरीके से कवर किया। अभी आप बॉल इज इन यूर कोर्ट, आपको क्या करना है? पहला काम कोई भी लैंग्वेज के लिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में विस्तार से कवर किया, जरूरी है कि आपका शब्द संग्रह संचय बढ़े, उसका आप इस्तेमाल करें, और उसका इस्तेमाल करते वक्त सही ढंग से आप उस वर्ड को सुने, लिखे, बोले और कई वाक्यों में उसका प्रयोग करें। आज ये सुविधा गूगल ट्रांसलेटर वगैरह पे उपलब्ध है। तो आज आपने इन सब 1 घंटे के दरमियान जितने भी नए मराठी वर्ड सुने उनको लिस्ट आउट कीजिए। ये होमवर्क बता रहा हूं मैं आपको, ये नॉन कंपल्सरी होमवर्क है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों को चिढ़ रहती है होमवर्क से, बट होमवर्क इज एसेंशियल टू कवर अप द क्लास वर्क। क्लास में जो 1 घंटा पढ़ाया गया, जो अगले 24x7 दिन आप देखने वाले हो, वहां ये होमवर्क होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। तो शायद जो हमने सोचा है कि 20, 25 या 50 घंटों के सेशन में आपको मराठी का एक्सपर्ट नहीं एटलीस्ट, बट एक कम्युनिकेबल मराठी आपको आ जाए, तो हमारा और आपका ये सपना या हमारा ये जो टारगेट है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। तो इसके लिए आपने जो नए वर्ड सुने उनको लिस्ट आउट करिए, उनका हिंदी, मराठी, इंग्लिश और आपकी मातृभाषा में ट्रांसलेशन कीजिए, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और जो आपने वाक्यों में प्रयोग किया उस वाक्य में किए हुए प्रयोग को आप गूगल ट्रांसलेटर पे खुद चेक करिए। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट भी आप, टीचर भी आप, और आपकी जो गलतियां हुई उनको जैसे ही हम लोग पहले 2-4 सेशन जो मैडम को इंट्रोडक्टरी सेशन की तरह इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद आपको कॉन्वर्सेशन मोड में लिया जाएगा। वैसे आप जहाँ ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके वर्क प्लेस पे आप मराठी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना शुरू कर दीजिए। लोग हंसेंगे, बट गलती होने के बाद, हंसने के बाद आपका इम्प्रोवाइजेशन भी होगा। So this is what is our expectation from all of you. You have any specific doubt, kindly ask here. Then in case nobody has got any doubt, we'll stop it here. Okay, just let me know in chat box. Shall we stop it here?
Yes or no तो लिख दीजिए. Okay, so it's from you. We'll stop it here. You can leave the meeting. Recording will be available by tomorrow afternoon or evening. You can go through first and second lecture, and then we will continue with the third lecture on next Tuesday, same 9 p.m. Okay, thank you so much. Bye bye. Good night. Bye bye.